Hello students, how are you? Class 7 subject English online classes में you are most welcome. As you know, due to COVID-19, the offline classes has been cancelled till 9 January. Let's start. आज हम चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. इस चैप्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे. चैप्टर नेम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इस चैप्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. एज यू नो, एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस. नंबर 1 पॉइंट, देयर आर टू वॉइस इन इंग्लिश. टू वॉइस इन इंग्लिश. Number 1, active voice, and number 2, passive voice. Active voice and passive voice. See this example. There are two voices in English. Number 1, active voice. Number 2, passive voice. It means active voice. Let's see about the definition of active voice. Active voice means the sentence in which the subject is a doer of action called active voice, and in which the doer of action is object called passive voice. There are two types of voice. Number 1, active voice and passive voice. Next point आगे हम डिस्कस करते हैं. There are two types of voice in English, active voice and passive voice. See the example number 1. Example number 1. In this example, they are playing football. This is the example. This sentence is the example of active voice. It means active voice के अंदर active voice का फंक्शन ये है कि active voice में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है. It means फुटबॉल प्लेइंग का जो वर्ब है, फुटबॉल प्लेइंग करना, दे के द्वारा डन किया गया है. This is why so it called active voice. Active voice. This is the sentence of example of active voice. And number 2, this is the example of active voice, and this sentence also will be converted into passive voice. As see, football is being played by them. It means as you see, certain scenes are doing there. Okay, this sentence and this sentence, both the sentence, but this sentence is related to active voice and this sentence is related to passive voice. तो मतलब ये जो it means ये sentence दिया गया है, ये active voice से related है, ये passive voice से related है. तो आप अच्छी तरह से इस sentence को देख सकते हैं और इसमें identify कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये sentence तो है active voice का, ये sentence passive voice का. यदि हम दोनों में कंपैरिजन करें इस सेंटेंस और both the sentences are different in formation and their grammatical formation. Let's see about the differences. Number 1, this is the object of the sentence, this is the subject of the sentence, this is the subject of the sentence, and this is the object of this sentence. It means conversion and converted will also be described. Next, this sentence, this word they
pronoun is work as subject in this sentence, and in this sentence they is identified as object. Okay, and this football, this word, this noun, here is object and here is a subject. इसके बारे में बात करें तो हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन किया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। इसका मतलब एक्टिव वॉइस के लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे नंबर फर्स्ट, एक एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट नेसेसरी एलिमेंट है। सबसे फर्स्ट नेसेसरी एलिमेंट कौन सा है? ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से, किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करें तो सबसे कंपल्सरी एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। इट मींस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इस फुटबॉल को हमने यहाँ रिप्लेस किया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अकॉर्डिंग टू रूल टेंस हमने ट्रांसफर किया, चेंज किया, इज बीइंग का यहाँ यूज किया है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है, बाय ऐड किया, उसके बाद देम ऐड किया। इट मींस ये सब्जेक्ट, अब ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, example number 2, my brother is washing clothes. Sentence number, example number first, sentence number 2, my father reads a newspaper. Reads a newspaper. Newspaper. This is the sentence related to active voice and this is also active voice. ये जो sentence दोनों given sentence, इन दोनों sentence को हमें पैसिव में चेंज करना है। ओके, पैसिव में चेंज करने के सेट रूल्स। रूल नंबर 1, किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए, टू मेकिंग चेंज इनटू पैसिव इन ए सेंटेंस, वी मस्ट कंपल्सरी एलिमेंट इज ऑब्जेक्ट एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो पैसिव। इट मींस इट इज द कंपल्सरी एलिमेंट इन ए सेंटेंस टू मेकिंग पैसिव। ओके, इस सेंटेंस के अंदर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है एंड माय ब्रदर सब्जेक्ट है, इज वॉशिंग, दिस इज कॉल्ड वर्ब, both the part auxiliary verb and main verb, both the part called verb. My father subject reads verb, a newspaper object. It means this sentence also has object and this sentence also has object, both the sentence has object and they can be converted into passive voice because they have the object. Okay, let's change. Clothes is being washed by my father. Okay, this sentence has been changed into passive voice. Clothes is being washed by my father. This is the passive sentence. Example number 2, my father reads a newspaper. Okay, let's change the sentence into passive. A newspaper is being washed by my father. 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 A newspaper
read by my father. By my father. Okay. Let's see. This is the subject, but this element here is object and this is subject. Newspaper is read by my father. Okay. Let's talk about the change of from certain change. Point number second. Main keywords to change passive voice. Okay, main keywords. Which are the main keywords to change a sentence into passive? Number one, identify the object. Identify the object. Number two, identify the tense. Number three, always use third form of the main verb. Next, add by with the subject of active. It means अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं. देखो, एक सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के अकॉर्डिंग टू रूल्स. पैसिव में चेंज करने के लिए नंबर फर्स्ट, मेन कीवर्ड्स टू चेंज. ये जो कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. उस सेंटेंस, जो सेंटेंस हमें गिवन किया गया होगा, उस सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा. ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आइडेंटिफाई द टेंस. टेंस का हमें पता लगाना होगा. टेंस की हमें नॉलेज होनी. ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. इट मींस थर्ड फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड. थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. Third form of the main verb is also called past participle. Okay, past participle. Past participle. PARTICIPLE. Past participle form का always यूज होता है. इसमें किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज करते हैं, जिसको लिटरेरी लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है. उसके बाद ऐड बाय. बाय ऐड करते हैं प्रपोजिशन के रूप में. बाय का भी ऐड यूज किया जाता है, टू का भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं ऑफ का भी यूज किया जाता है, बट मोस्टली आपके सिलेबस में बाय का यूज किया जाता है. ओके, विद द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव. एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसमें हम क्या ऐड करते हैं? बाय ऐड कर दिया जाता है. इससे रिलेटेड सर्टेन टूल्स हैं. नेक्स्ट हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. किसके बारे में? एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के सर्टेन रूल्स हैं. किस फॉर्मूले पर डिपेंड है. मैं आपके लिए फॉर्मूला भी आगे कर देता हूं एक्सप्लेन. नंबर
एक्टिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस होता है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के अंदर दोनों पार्ट सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से? HB प्लस MB, the combination of HB and MB called verb। सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंस। कोई भी एक्टिव सेंटेंस इस तरह की फॉर्मेशन में दिया गया होगा, सब्जेक्ट होगा उसमें, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब कॉल्ड वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है किसी भी सेंटेंस में, कि कौन सी जगह पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, वो प्लेस वर्ब के बाद होता है। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्लेस जनरली होता है, जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली। ओके, जनरली इसके बाद होता है। उसके बाद में रेस्ट ऑफ ऑल होता है, उसको हम रेस्ट बोल देते हैं और ETC बोल देते हैं। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब के अंदर दोनों हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, रेस्ट ऑब्लिक ETC। अब इस सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को यदि पैसिव में चेंज करें, इफ अ सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव, द स्ट्रक्चर विल बी, क्या होगा स्ट्रक्चर? नंबर 2, पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस। पैसिव में इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे फ्रंट में बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है ओबीजे, ECT, ऑब्जेक्ट, ओबीजे, ऑब्जेक्ट प्लस एक्टिव सेंटेंस, ऑलवेज टेक हेल्पिंग वर्ब प्लस MB थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने अभी रिसेंट में आपको जस्ट अभी बताया है, डिस्क्राइब किया है कि MB थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस MB3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले में चेंज कर दिया जाता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करें। देयर आर 2 वॉइस इन इंग्लिश, नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देयर आर 2 वॉइसेस। एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट होगा, वर्ब, बोथ द कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा, रेस्ट, ETC। पैसिव सेंटेंस के अंदर फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सबसे बिगिनिंग में लाएंगे, इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर, इसको बिगिनिंग में लाए, यहाँ सब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे सबसे एंड में बाई लगा के, यानी बाई प्रपोजिशन लगा, एंड में बाई प्रपोजिशन के साथ में इसको ऐड कर दिया जाता है। हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसके फॉर्मूले हो गए। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस राइट करके उनको चेंज करता हूँ, तो आपको और समझ में आ जाएगा एग्जांपल्स, और आप एग्जांपल्स को राइट भी करेंगे। ओके, एग्जांपल्स नंबर 1, दे बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द बाय, BUY बाय बॉट, दे बॉट a car. Okay, sentence number 2, he helped my brother, he helped my brother। अभी मैं आपके सामने, अभी मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो
जो मेन रूल्स है ना जिनसे बिगनिंग होती है। बाकी टेंस से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में। He helped my brother. Sentence number 3. A cow is grazing. A cow is grazing in the grazing grass in the field. Sentence number 4. They took tea. Okay. They bought a car. He helped my brother. A cow is grazing grass in the field. They took tea. Okay. In sentence, these are our sentence, or these sentence are in active voice, and we have to change this sentence into passive according to rule. About the rule, we will discuss next class. Okay. Now is the introduction of active and passive voice. A car. This is the object in this sentence. My brother. This is the object in this sentence. Grass. This is the object in this sentence. Tea. This is the object in this sentence. They. Subject. This is the subject in this sentence. He. This is the subject in this sentence. A cow. This is the subject in this sentence. They. This is the subject in this sentence. Okay. But. This is the verb. Help. This is the verb. Is grazing. This is the verb. Took. This is the verb. This is the second form. This is also second form. This is present participle, present continuous. This is the past participle, second form of the verb. इन सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। एक छोटा सा रूल्स मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए टू नो, टू अबाउट, टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस अबाउट द ऑब्जेक्ट, we ask 3 questions to main verb: who, which. If we get answer, there is an object in the sentence. If we don't get answer, there is no object in the sentence. जैसे कि अभी मैंने बताया है कि यदि किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करना हो, यदि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है या नहीं, यस या नो, उस सेंटेंस में हम मेन वर्ब से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, किसको, किनको, क्या। यदि हमें आंसर मिल जाता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एंड आंसर नहीं मिलता, वी डोंट गेट आंसर, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। लेट्स अप्लाई दिस रूल ऑन दिस सेंटेंस। अ कार, व्हाट से, हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, किसको व्हाट, किसको खरीदा नहीं, क्या और क्या खरीदा, आकार ऑब्जेक्ट है, इसमें अप्लाई करते हैं। माय ब्रदर हेल्प, किसकी हेल्प की, माय ब्रदर, ओके। हु इज ग्रेजिंग ग्रास, क्या, व्हाट इज ग्रेजिंग ग्रास, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दैट टू, टी, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑल द 4 सेंटेंस हैज द ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक, इनको चेंज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बिगिन, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाया जाता है पैसे चेंज करने के लिए। अ कार was bought by, bought, a car was bought by them, they change into
ऑब्जेक्टिव फॉर्म देन माय ब्रदर, इसको हम चेंज करते हैं, माय ब्रदर was helped by him, इको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया गया, हिम हो गया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ग्रास, इसको चेंज करना है, GRASS, ग्रास इज वॉज पर जहां पे बीइंग का यूज किया जाता है, द ग्रास is being grazed by a cow in the field, they took tea, sentence will be changed into passive, टी ऑब्जेक्ट है, सबसे फ्रंट में लाया जाएगा, टी वॉज टेकन बाय देम। लेट्स रिवाइज अगेन, दे बॉट अ कार वॉज बॉट बाय देम, he helped my brother was helped by him, a cow is grazing grass in the field, grass is being grazed by a cow in the field, adverbial phrase and the etc are taken after, came after object, okay? They took tea was taken by them. This is the passive of the sentence. All the sentence you have to written about the sentence. Let's go about the change of tense. Next point. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये कि टेंस रिलेटेड जो चेंज किया जाता है वो 12 टेंस, यानी टेंस आर 3, 4 फॉर्म की फॉर्म हो जाती है 12 टेंस, 12 में से ओनली 8 टेंस के हम पैसिव चेंज कर सकते हैं, ओके? ओनली 8 टेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है, और जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कंटीन्यूअस एक तो हो जाता है जेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऑल द 3 टेंस डज नॉट चेंज द पैसिव वॉइस, पैसिव में नहीं बदलते हैं, इनका पैसिव नहीं बनता, ठीक है? नंबर 2 फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं, 3+1 all the 4 tense does not change into passive, ओके? कौन कौन से टेंस हैं जिनको हम चेंज करते हैं? नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नंबर 3 जेंट परफेक्ट, नंबर 1 जेंट सिंपल, जेंट कंटीन्यूअस, जेंट परफेक्ट, एंड मैंने आपको नंबर 4 बताया था अभी परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको हम चेंज नहीं करते, चेंज नहीं किया जाएगा,
Number 5, past continuous. Number 6, simple past. Okay, students, thank you so much. I hope that you have to understand about the topic of active voice and passive voice. We will continue tomorrow. Thank you.